वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा। ठहर जा, बाजा बज रहा है। वहां पे शराब पिए यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। Well, ladies and gentlemen, you just heard Rahul Gandhi predict that the future of Uttar Pradesh is drowning in daru and dance and darkness. His critics, of course, have been quick to say that perhaps Rahul Gandhi should instead predict his own dwindling political fortunes. We will get you the entire speech Congress party's Yuvraj gave from the holy city of Varanasi on its impending doom. But first, let's contextualize this for you. Rahul Gandhi's Bharat Jodo Nyay Yatra today was in Prime Minister Modi's constituency of Varanasi. It was a bit lonely at the top for Rahul Gandhi as he marched on without his sister Priyanka Gandhi Vadra, who failed to make an appearance. Even UP ke ladke didn't quite make a symbolic show of strength, with Akhilesh Yadav staying away from the Bharat Jodo Yatra. With a miffed Akhilesh Yadav also giving the Yatra a miss, it seems like nothing went Rahul Gandhi's way today. Not only did Akhilesh leave Rahul Gandhi hanging high and dry, he dug in his heels over seat sharing. The seats of Moradabad, Balia and Bijnor may just turn out to be the deal breakers because apart from the 17 seats that the Samajwadi Party has offered the Congress Party, these 3 seats seem to be the deal breakers, with the Congress wanting 17 plus these 3 seats, so 20 out of 80 seats in Uttar Pradesh. Since Congress has insisted on getting these seats, just as a side note, let me remind you that Moradabad is Robert Vadra's hometown. Why is the Congress willing to end its alliance with the Samajwadi Party over a seat that Samajwadi Party has always held? Your guess is as good as mine, but the statistics clearly show that the minority votes may hold the swing, with over 65% of this constituency having Muslim population. Meanwhile, adding insult to injury, Akhilesh announced his 3rd list of candidates even before talks with Congress had concluded. So that's 31 out of the 80 seats already announced by Akhilesh Yadav. But Rahul Gandhi wasn't just deserted by his parivar and shunted by his ally. He was also rejected by the Janta. Watch how the people of Rai Bareli, a Gandhi bastion, showed Rahul Gandhi black flags. Of course, the Congress party says these were BJP supporters rather. It is in the midst of this context that Rahul Gandhi said that the future of Uttar Pradesh is drowning. Listen in. वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है। ठहर जा, बाजा बज रहा है। वहां पे शराब पिए यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। The 2019 giant slayer who took down Rahul Gandhi in his own family fortress of Amethi, Smriti Irani, was quick to school Rahul Gandhi for his comment, which was against the entire Janta of UP. Listen in. राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। और आज काशी की पुण्य भूमि के बारे में और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अपशब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, तो मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का भविष्य बढ़ रहा है प्रगति की ओर। मेरी ये हिदायत है सोनिया गांधी को कि अपने बेटे को अगर आप अच्छे संस्कार ना दे सके तो उनसे कहें कि इस प्रकार के हमारे जो पुण्य स्थल हैं उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना बंद करें, वरना मुंह तोड़ जवाब प्रभु तो देंगे ही, जनता भी देगी।
Well, I made a little mistake on the voting, on the population percentage in Moradabad. It's not 66, slip of tongue, 46% of the minority population in Moradabad. But, ladies and gentlemen, in the midst of all of this, a Gandhi loyalist put Rahul Gandhi in a hard spot. Jairam Ramesh wrote that Rahul Gandhi may just return to Amethi because mahol to hai, where he lost to Smriti Irani in 2019. Not one to turn down a challenge, Smriti Irani readily agreed. Listen in. वो राहुल जी और सीईसी और हमारे अध्यक्ष पर निर्भर है, पर माहौल जो है वापसी का है। तो लोग समझते हैं कि 2019 में उन्होंने एक गलती की और वो राहुल जी को वापस चाहते हैं। चैलेंज करना उनका लोकतांत्रिक हक बनता है, चैलेंज करने दीजिए। अब वक्त आएगा, राहुल जी अगर लड़ना चाहते हैं, सीईसी मंजूरी देती है तो वो लड़ेंगे, उन पर निर्भर है। पर हम किसी चैलेंज से भाग नहीं रहे, हम किसी से पीछे हट नहीं रहे, हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश जी ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। मैं चाहूंगी कि जयराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है उसको आज ही सीईसी उनकी जारी कर दे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूँ। The political corridors are abuzz that the Parivar is trying to fortify its bastions in Uttar Pradesh. While Jairam Ramesh says Rahul can return to Amethi, rumour has it that Priyanka Gandhi Vadra might replace Sonia Gandhi in Raebareli, but no firm word coming in from the party. In fact, while Rahul Gandhi's Nyay Jodo Yatra was passing through Amethi and Raebareli, Priyanka Gandhi did not make an appearance and no announcement to this effect in any case by the Congress party. Meanwhile, the Congress is ready to risk its alliance with the Samajwadi Party over Moradabad, which happens to be Vadra's hometown, but also a town where I told you the population statistics were something that gave the Congress party hope that they could win this seat. But why? That's the question. And on the NewsHour Fact Check, let's show you the numbers. And what do these numbers say? First, can Rahul Gandhi return to Amethi? In 2014, he managed to win with 46.7% vote share against Smriti Irani. But by 2019, Smriti Irani prevailed with a victory margin of 5.8% and a vote share of 49.7%. Second, will Priyanka Gandhi Vadra replace Sonia Gandhi in Raebareli? This is the second family bastion that the Gandhis fear they could lose. Watch how Sonia Gandhi went from 72% vote share in 2009 to 63% in 2014 and finally to 55.8% in 2014. Even the victory margin has reduced from 55.4% in 2009 to 17.4% in 2019. And now for the third seat of Moradabad, which is the bone of contention between the Congress and the Samajwadi Party. While nobody is saying that Robert Vadra might contest from here, but why is the Congress so stuck on Moradabad? This seat was won by the Samajwadi Party in 2019. The whopping 50.6% vote share, Congress only managed to get a 4.6% vote share for Imran Pratapgarhi, the poster boy of the Congress party. If you look at the 2014 numbers, the BJP had won the seat with 43% and Samajwadi Party came in second with 35.5%. Congress even then got a mere below 2% vote share in this constituency. The last time it won Moradabad was actually in 1984, 39 years ago. So why is the Congress today demanding this seat? Delivering another setback to the Congress, Akhilesh Yadav has unilaterally now declared his third list showing the Congress who's the boss in Uttar Pradesh. It has also declared its candidates in Western UP, perhaps to counter the loss of Jayant Chaudhary's RLD. But interestingly, Akhilesh Yadav also announced that his party will fight the Prime Minister in Varanasi. Remember, Congress's UP chief Ajay Rai was eyeing this seat, possibly wants to move to Balia this time, but last time he contested from Varanasi and lost. But Akhilesh has dismissed him in the past as a chirkut. Listen in
to the Samajwadi Party's dig in its heels over seat sharing, while Congress speaks of a common goal. समाजवादी पार्टी के जितने भी हम लोग को चुनाव लड़ाने हैं, हम लोग ऑलरेडी इस पे डिसीजन ले चुके हैं कि कौन कौन कहां से चुनाव लड़ने जा रहा है. तो मैं समझती मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी भाजपा का सामना करने जा रही है. Every political party wants to protect its political space, which is very understandable. And you have to agree that in a large election like the Lok Sabha elections, there has to be certain give and take. Now, given the fact that our common objective is much larger than whether you fight one seat more or fight two seats less, idea is to put up united candidates against the NDA alliance. And that worries the BJP because the vote share of the India Alliance is almost 2/3 in this country. Negotiations are ongoing. The seat sharing will conclude very quickly and very soon. We have to fight these elections together. Well, negotiations may be ongoing, but people are asking the legitimate question. Is it a dead end or revival for Rahul Gandhi in Uttar Pradesh? That's the question, and that's the debate coming up on the other side. You're watching the News Hour first. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time. Joining the News Hour tonight, Dr. Ajay Alok, National Spokesperson of the BJP, Harshvardhan Tripathi, Senior Journalist, Rohit Agarwal, Spokesperson of RLD, now with the NDA. Also joining the debate tonight, Ashutosh, Political Analyst, Senior Journalist, Manoj Yadav, National Spokesperson of the Samajwadi Party. And my first question goes to Tehseen Poonawala, Political Analyst. Tehseen Poonawala, why would Rahul Gandhi go on to actually abuse the Janta of Uttar Pradesh and call them drunk people, dancing on the roads, people whose future was drowned in darkness? Why would he do that? What is he angry about? Is he angry about the fortunes of the BJP? And if he is, then why is he taking it out on the people of Varanasi? And in the same breath also, raising questions of the Ram Mandir, that only Adani and Ambani are there. Have you not seen the profile of the 50 lakh people? The visuals are all out there. You can see. Do they all look like Adanis and Ambanis to you, Tehseen Poonawala? Good evening, Navika ji. Thank you so much for having me in your show. Rahul Gandhi, you're right, is extremely angry, and every right-thinking Indian, every Indian citizen should be angry. Angry at the lack of opportunities for our youngsters. NCRB data says over 125,000 fellow citizens, mostly young men, committed suicide because of lack of jobs. Lakhs and lakhs of Indians are migrating out of India. This is the highest unemployment in the last 40 years. People are taking to alcoholism. The alcohol sales is the highest in the country. Not just that, we have a massive drug problem that has engulfed India. Not you personally, the BJP may want to wash over this, but this is the reality of our country, that a massive amount of drugs are coming into our country. We have youngsters dying of a heart attack, massive cardiac arrest, and everyone who's watching the show will have somebody close by who's died of a heart attack. If the leader of the principal opposition party is raising issues for the future of the youth, and that the BJP says as an insult to the country, I think the greatest insult to the country is the BJP governing it. Now, let me ask you two things. The enemies of our country and the enemies of Hindu youngsters and Muslim youngsters are not each other, but a lack of opportunities. Why doesn't Jai Shah ji take to the streets with swords if religion is under so much threat? Why doesn't Shivraj Singh Chauhan ji's kids take to the street? Why don't Himanta Biswa Sharma ji's kids take to the street? Why are they going to foreign universities and studying in English? That is the question that Rahul Gandhi is asking, and that is the answer we are not getting from the BJP. Ajay Alok, would you want to respond to the litany of charges coming your way from Tehseen Poonawala? First of all, Tehseen should know that in this country, no one has ever said this, ever said this, कि Hindu खतरे में. Whenever it has been said, it's always said that Islam खतरे में है, नाराए तदबीर, Allahu Akbar. So don't create a wrong narrative which cannot be put forward too. The question was very simple, that the leader of opposition who was aspiring to become the king, or so-called the prime minister, already proclaimed crown king. He has the audacity to speak in Sultanganj about a day before incident that he saw in the night, that somebody was drunk on the road, and then he compares it with the whole UP. One person versus 35 crores population, and the future is bleak.
future is intoxicated. Is this a language? What do you speak? And that too you're mentioning by the name of Banaras. What for? Whom you are trying to please? Do you think this country, people of this country are fool enough? It's a scripted story, my dear. He did it intentionally the next day. And by the way, he was on a yatra, right? How could he see that? Somebody was from the yatra who was drunk. This drunkardness has gone into the head of the Rahul Gandhi that since he belongs to the Gandhi clan, Gandhi family, he can say anything about the religion, Hindu religion. Please get out of it. I agree that he's not a Hindu. That doesn't mean he will insult. Does he have the audacity to insult other religion like that also? When he sees somebody outside the church or somebody sees somebody outside the masjid or anything, does he ever done that? He intentionally did it just to insult Baba Vishwanath and Banaras. And this is his view about UP, and it's not new by the way, Tessin. You also know this. When he lost from Wayanad and he abandoned Amethi, when he lost from Amethi and abandoned Amethi, and he won from Wayanad, 3 years ago he made a statement about UP and North India. That I'm here, I'm enlightened, but when I go to the North and in the North, politics is quite depressing for me. So this is the feeling they are having, and you are trying to defend him by saying that opportunities lost by youth and this and that. The youths of this country are very happy right now. It's not by creating a mere narrative of the Congress, which is already a lost party, whether it's in Uttar Pradesh or whether in any state, that you are begging for seats and you are not getting it. This is not a Bharat Jodo Nyaya Yatra, this is a completely Musalman Jodo Yatra. And that's why he's begging for seats like Bijnor, Sambhal, Muradabad and every other places. Well, let me get in Manoj Yadav. Navika ji, one second. Musalman. Let me get in Manoj Yadav. One second. How has this got to do with Muslims? I want to let Manoj bhai answer. But even in Moradabad, it's 46% Muslims. The Hindus are more. This is to please Muslims. Yes, in Banaras I can speak like this. This is to please Muslims. That yes, in Banaras I can speak like this. This is to please Muslims. Nothing else. Nothing else. The party which says that the first right belongs to the Muslims. Is it a Hindu just to please Muslims. The whole fight is about how to please Muslims. This debate, nor Manoj bhai, nor I want to make it Hindu Muslim. No, we don't want it. We never said that Hindu khatre mein hai. It's always Islam khatre mein hai. And these narratives are being given by parties, people like your party, which you are supporting, unfortunately. You don't have we have a roadmap. We have shown it in the country for the last 10 years, and we have roadmap till 2047, and we are going to be here till 2047. Okay, all right. Allow me to come in. Manoj Yadav जी, भविष्य वाराणसी का अंधकार में है. वाराणसी में सब पिए हुए लेटे रहते हैं, नाचते रहते हैं सड़कों पर. क्या ये वाराणसी की सही तस्वीर है? आप तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मुझे बता दीजिए ये वाराणसी की सही तस्वीर है? और दूसरी बात, उसी वक्तव्य में राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर तो खाली अडानी अंबानी जाते हैं, तो ये जो बाकी लोग गए हैं वो क्या हैं? वो सब अडानी अंबानी हैं कि अडानी अंबानी के क्लोन्स हैं? ये किस तरह की भाषा, और ये गुस्सा किस पर है? जनता पर, उसी जनता के ऊपर गुस्सा दिखाया जा रहा है जिस जनता ने वोट करना है. ये किस तरह की प्रवृत्ति है? बिल्कुल नाविका जी, वेरी गुड इवनिंग. जैसा कि आपने जो सवाल पूछा और हमारे बीजेपी के साथी ने जो वर्डिक्ट ले लिया डिबेट में, वो मैं बड़ा कोई हतप्रभ नहीं हूं, ना बहुत ज्यादा मैं शॉक्ड हूं. और मैं अपने तहसीन जी से इस बात को कहूंगा कि बहुत ज्यादा परेशान मत होइए. यही लाइन तो है लास्ट, जब जगह सब जगह से हार जाएंगे तो मुसलमान जोड़ो, ये मुसलमान हो गया, ऐसे ही बोलेंगे बीजेपी के प्रवक्ता, और पाकिस्तान पे भी बोलेंगे. तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं. लेकिन नाविका जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तर प्रदेश में राहुल जी ने जो शराब की बात की और लोगों को ड्रिंक करके रोड पे डांस करते नाचते हुए कहा, तो यूं ही नहीं कह दिया. इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है. 2021-22 में मैं अभी डेटा देख रहा था, लगभग 36,208 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया था शराब से, जो अब लगभग 50,000 करोड़ से भी ज्यादा, मे बी 60 या 65,000 के आसपास का आंकड़ा है, जो अब रेवेन्यू जनरेट कर रही है शराब की बिक्री से योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो टोटल टैक्स कलेक्शन का एक बड़ा प्रतिशत है. तो जाहिर सी बात है, जो स्टेट इतनी शराब बेच रहा होगा तो उसको पी के ही तो बेच रहा होगा, वो कहीं किसी दूसरे काम के लिए तो बिक नहीं रही है. लोग उत्तर प्रदेश के ही पी रहे होंगे,
तो पीने के बाद उसमें कुछ लोग अपने घरों में पी रहे होंगे, कुछ लोग नागिन धुन पे डांस करते हुए बनारस की सड़कों पे, इलाहाबाद की सड़कों पे और या पूरे प्रदेश के हर जिलों की सड़कों पे करते हुए नजर आएंगे। इसमें राहुल जी ने मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात कह दी, लेकिन चूंकि बीजेपी की आदत है लपेट लेने की, लपेट लिया, अरे बनारस में, तो बनारस में तो राहुल जी का शुद्धिकरण भी हुआ था। उसके लिए क्या कहेंगे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता या पैनल में जो लोग हैं कि एक उस व्यक्ति का जिसके व्यक्ति के लोग शहीद हो गए, जिसके परिवार के लोग इस देश के लिए शहीद हो गए, उस व्यक्ति का बीजेपी के लोगों ने शुद्धिकरण कर दिया जहां से उन्होंने भाषण दिया। थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। अगर थोड़ा सी भी नैतिकता है, थोड़ी सी भी आपके अंदर ईमानदारी बची है किसी चीज के लिए, इस देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, इस देश के तमाम सारे शहीदों के लिए, तो कम से कम शुद्धिकरण तो ना कराते। मुद्दा ये बनना चाहिए था नाविका जी, मुद्दा ये बन गया कि राहुल जी नागिन डांस वालों पे टिप्पणी कर गए। अरे नागिन डांस होगा, तमाम सारे डांस होंगे, ये बड़ी बात नहीं। मैं दूसरी आपको एक बात कह दूं, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से इंटैक्ट है। हम चुनाव लड़ेंगे पूरी शिद्दत से, रणनीति से, ऊर्जा से और उस ताकत से चुनाव लड़ेंगे जहां बीजेपी को हरा सके, क्योंकि बीजेपी के अच्छे दिन खत्म हुए। 10 साल का शासन देश ने दिया, अब दूसरे लोगों की बारी है। क्योंकि आपने जो वादे किए थे वो वादे नाविका जी इन्होंने नहीं पूरे किए। अगले अभी टर्म में जब सवाल पूछेंगी तो मैं वादों का भी जिक्र करूंगा। चलिए, लेकिन आपने ये बहुत अच्छा कहा, आपने ये बहुत अच्छा कहा कि आपकी अलायंस इंटैक्ट है और आप शिद्दत से लड़ेंगे। अब लड़ेंगे किससे ये आपने नहीं कहा। यहां तो लग रहा है शिद्दत से आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं, क्योंकि 80 में से 31 सीटें आपने अनाउंस कर दी हैं और भारत जोड़ो यात्रा में आप जा नहीं रहे हैं। शिद्दत और अलायंस किसके साथ है मुझे तो समझ नहीं आया, पब्लिक को समझ नहीं आया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपको समझ आया ये शिद्दत किसकी तरफ है और कौन सी अलायंस की बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये तो मनोज जी भी स्वीकारेंगे कि अखिलेश जी जिस रणनीति पर चल रहे हैं वो रणनीति एकदम दुरुस्त है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ कड़वा बोले कांग्रेस को कट टू साइज कर देना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एक के बाद एक जो प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं, और अखिलेश जी ने सिर्फ इतना नहीं किया है, कट टू साइज इसलिए भी किया, स्वामी प्रसाद मौर्य, सलीम इकबाल शेरवानी और पल्लवी पटेल, इन्होंने जो हमला किया वो एक तरह से समाजवादी पार्टी के मूल वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। और पल्लवी पटेल तो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी रही वाराणसी में। अब अखिलेश यादव तो नहीं गए, तो उन्होंने समझदारी का काम किया। और मुझे लगता है कोई भी नेता सही समय पर अपना नुकसान होने से बचा ले तो वो समझदारी है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भ्रम है, और मैं इसे ठीक मानता हूं। अगर कोई भी राजनीति कर रहा है तो वो अपने को मजबूत करने के लिए ही राजनीति करता है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है ये हम सब जानते हैं। एक रायबरेली थी, रायबरेली से भी सोनिया जी ने लगभग एक तरह से कहेंगे छोड़ दिया, राज्यसभा चली गई। तो अब कितनी वहां लड़ाई बची रह जाएगी, क्योंकि जब अमेठी से जीतने पर सिर्फ नामांकन वायनाड से करने की वजह से अमेठी की जनता ने हरा दिया, तो अगर राज्यसभा से राजस्थान से सोनिया जी जा रही हैं तो उनका क्या हाल होगा। और मैं फिर से याद दिला दूं, मुलायम सिंह जी ने कहा था, अखिलेश जी ने कहा था, अगर हम समर्थन न करें तो रायबरेली और अमेठी जीतना भी कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। एक ये हिस्सा है जिसको हर कोई जानता है, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा जो राहुल गांधी वाला आप कह रहे हैं, मैं बार बार ये देख रहा हूं और मैं सचमुच पीड़ा में हूं। मुझे लगता है कि देश की राजनीति में हर किसी को अपनी राजनीति करने का अधिकार है। एक दूसरे के ऊपर खूब आरोप लगाइए, खूब लड़िए झगड़िए, जनता के बीच में कोशिश कीजिए कि आपकी बात सुनी जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश का भविष्य नशेड़ी हो गया है, सड़क पे लौट रहा है, डांस कर रहा है, नाच रहा है। कौन जात हो जरा बता दो, पत्रकार पिट जाए, मालिक तुम्हारा कौन है, इस तरह की बातें अगर कोई नेता करने लगे, अगर किसी नेता को यह लगने लगे ऐश्वर्या राय आई थी राम मंदिर में, मतलब जो आई होती तो कोई गलत नहीं था, लेकिन संयोगवश वो तो आई ही नहीं थी। किसी को यह दिख रहा है राम मंदिर में कौन है, मोदी दिखेगा, अंबानी दिखेगा, अडानी दिखेगा। राम मंदिर में राम दिखेंगे, अंबानी अडानी हो या मोदी या राहुल गांधी या कोई और, सबको लाइन में लग के दर्शन करना। आप नहीं गए, दूसरे लोग गए थे दर्शन करने। देश की जनता राहुल गांधी के ऊट पटांग बयानों से अब पक रही है। इतनी अगंभीरता किसी विपक्ष के नेता ने दिखाई हो, मुझे तो स्वतंत्रता के बाद नहीं दिखाया। मैं पूछना चाहती हूं आशुतोष जी, आपका क्या विश्लेषण है? ये उत्तर प्रदेश में
राहुल गांधी नाराज नजर आ रहे हैं। और मैं भी हर्षवर्धन जी के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि हर आदमी अपनी पॉलिटिक्स करेगा, अपना बुरा भला सब देखेगा, लेकिन ये जो गुस्सा जनता पे उतारा जा रहा है, इसके पीछे क्या है? कौन सा गुस्सा है जो वाराणसी की जनता पे उतारा जा रहा है? और मुझे पता नहीं आपने वो वीडियो देखा या नहीं, पर एक वीडियो है जहां एक भीड़ के अंदर एक पत्रकार से पूछा गया, लोकल अखबार का कोई पत्रकार था, शिव प्रसाद यादव ऐसा वहां के लोग बता रहे हैं उनका नाम था, उनको भी पूछ रहे भाई तुम ओबीसी हो, तुम ओबीसी हो, तुम्हारा मालिक कौन है? वो तो ओबीसी नहीं है, वो तो मालिक पैसे वाला होगा, उसको तो कोई लेना देना नहीं होगा रिजर्वेशन से। ये इस तरह का किसी पत्रकार को भरी सभा में मुझे लगता है थोड़ा ह्यूमिलिएट फील किया होगा उस पत्रकार ने, क्योंकि हम आप होते तो हमें भी ऐसा लगता। ये कहीं ना कहीं एक लेटेंट एंगर दिखा रहा है। व्हाई इज दिस एंगर देयर? व्हाट इज ही एंग्री अबाउट? नाविका जी, मैं तो समझ ही नहीं पाता हूं कि आजादी के बाद के सबसे गंभीर राजनेता पर इतनी लंबी चौड़ी बहस क्यों होती है। हर दूसरे दिन बहस होती टीवी चैनल्स के ऊपर, हर दूसरी डिबेट में जो तमाम होते हैं वो राहुल गांधी की खूब जम के अगंभीर, पप्पू, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अगर कोई आदमी इतना अगंभीर है तो उस पर चर्चा क्यों करते हो भाई? मुझे तो समझ में नहीं आती है बात। इसका मतलब ये कि वो बातें जो कह रहे हैं उसमें कुछ दम है, और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को रात को 12 बजे निकल के देखना चाहिए। दरअसल मैं तो इसी शहर का रहने वाला, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और हम सब चल के देख सकते हैं कि रात के 12 बजे या शाम होते ही बहुत सब, मुझे अच्छी तरीके से याद है जब इस तरीके के मुद्दे को पंजाब के बारे में उठाया गया था 2011-12 के आसपास, तब लोगों ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया था, कहा था कि आप पंजाब की छवि को खराब करना चाहते हो। उस वक्त एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, और कहा था कि पंजाब की छवि को खराब किया गया। लेकिन अगर आज आप पंजाब के गांव-गांव में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी पूरी की पूरी पीढ़ियां नष्ट हो गई हैं। अगर वैसी स्थिति की तरफ अगर कोई नेता या कोई आदमी अगर ध्यान उठाना चाहता है तो उसको काशी का अपमान करने जोड़ दिया जाएगा, उसको अगंभीर बता दिया जाएगा, उसको बेवकूफ बता दिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये सही तरीका नहीं है बातचीत करने का भी, और ना ही किसी के बारे में इस तरीके से अपमानित करने का। जो बार बार राहुल गांधी को अपमानित करने की जो कोशिशें होती हैं, ये दरअसल अंदर की एक भड़ास है जो निकल नहीं पा रही। ये भी एक सच्चाई है। क्या अगर हम एक हिंदू होने के नाते, भारतीय होने के नाते, अगर कल मैं ये बोलूं कि इस देश के अंदर जो दहेज प्रथा है उसके ऊपर कितने लोग बात करते हैं, जातिवाद के नाम पे जिस तरीके से एक खास तबके का वर्चस्व स्थापित और दूसरे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, उस पर चर्चा करें तो क्या हम हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं? क्या हमें अपने अंदर की कुरीतियों की तरफ देखने का अधिकार नहीं है? और अगर कोई पॉइंट आउट करे तो हम उसको अपमानित करने का काम करें? मुझे लगता है ये तो विमर्श का तरीका ठीक नहीं है, और ये विमर्श ऐसे होना भी नहीं चाहिए। चलिए आप कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, पर मैं दिखाना चाहती हूं किस तरह से एक पत्रकार के बारे में उन्होंने कहा। मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, जरूर सुनिएगा आशुतोष जी। आप जर्नलिस्ट हैं और ओपन माइंड रखते होंगे, ये इसलिए सुनवाना चाहती हूँ। आप शिव प्रसाद जी हैं, आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। अरबपति है वो। आपने कभी भैया उसको मारो मत बेचारे को। अब पत्रकार का मालिक अरबपति है, नहीं है, ओबीसी है, नहीं है, इसमें भी हम अपमानित कर रहे हैं राहुल गांधी को, अगर ये सवाल पूछ रहे हैं आशुतोष जी? नहीं, क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज की तारीख में 90% जर्नलिस्टों में कितने परसेंट ओबीसी, कितने परसेंट दलित हैं? पर एज अ जर्नलिस्ट आप आंसरेबल हैं कि आपके मालिक की जाति क्या है? आर यू आंसरेबल फॉर दैट? बट ये सच्चाई है या सच्चाई नहीं है? नहीं, पर आई एम आस्किंग यू, आप डाइवर्ट मत करिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ एज अ जर्नलिस्ट, एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर द जाति ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी आई वर्क फॉर? बट ये सवाल है या सवाल नहीं है? कितने परसेंट? मैं जो पूछ रही हूँ वो सवाल है या नहीं है?
मैं जो पूछ रही हूँ वो सवाल है या नहीं है? तारीख में मालिक है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए? नहीं, पर मैं जो पूछ रही हूँ, पत्रकार की क्या गलती है अगर उसे भरी भीड़ में ये सवाल पूछा जा रहा है? ये पत्रकार के लिए जरूरी है इसका जवाब देना? मैं पूछ रही हूँ आपसे। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। इस देश के अंदर जब भी कास्ट सेंसस की बात आएगी तो उसका मजाक क्यों उड़ाया जाएगा? क्यों कहा जाएगा जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है? जब आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे थे, जब आप घोड़े पर सवार नहीं होने दे रहे थे, जब आप लोगों को मुझ काटने के ऊपर आप उसके साथ अत्याचार करें, तब वो जातिवाद नहीं था। आज अगर ओबीसी और दलित खड़ा होकर अगर अपने अधिकारों की बात करेगा और पूछेगा कितने पत्रकार ओबीसी हैं, कितने पत्रकार दलित हैं, तो हम कहेंगे जातिवाद को बढ़ावा दे रहा। ये कौन सी बात है? अरे भाई, मैं तो ये सवाल ही नहीं उठा रही, मैं सवाल उठा रही हूं कि पत्रकार क्या रिस्पॉन्सिबल है इस बात के लिए? क्या उसे शर्मसार होना चाहिए कि उसका मालिक ओबीसी नहीं है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आशुतोष जी इस बात का तो जवाब दे ही नहीं रहे। नहीं, मैं आप मेरे सवाल को तोड़-फोड़ कर रही हैं। मैं जो जवाब दे रहा हूं वो मैंने एक सवाल खड़ा किया। आप मुझे बताइए कि आज की तारीख में हिंदुस्तान के आज आप एंकर नहीं है, आज आप एंकर नहीं है, आज आप एक्सपर्ट हैं। सवाल मैं खड़ा कर रही हूं, मेरे सवाल का जवाब तो आपने दिया नहीं, आप अपना सवाल खड़ा कर रहे हैं। न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस में कितने परसेंट ओबीसी पत्रकार है, कितने परसेंट दलित पत्रकार है, कितने परसेंट मुस्लिम पत्रकार है? क्यों एक खास नैरेटिव इस देश के अंदर चलाया जाता है? मुझे समझ नहीं आ रही, आप इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि एज अ जर्नलिस्ट मैं कैसे तय करूंगी कि मेरा मालिक किस जाति से आता है? हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये सवाल का जवाब है ही नहीं। अब राहुल गांधी क्यों उस पत्रकार पर बरस रहे थे, ये सवाल उठाना सही नहीं है? नविका जी, कांग्रेस पार्टी का मालिक किस जाति का है? कांग्रेस पार्टी का मालिक किस जाति का है? लोकतंत्र में हम लोग इतना स्तरहीन हो गए और कुछ भी बात करेंगे, शर्म नहीं आती है? राहुल गांधी ने यही सवाल पूछा था, पत्रकार का नाम उसके नाम के आगे यादव निकल गया, बोलती बंद हो गई। हर जगह इस तरह के सवाल पूछते हुए शर्म नहीं आती? जाति खांचे में बांटकर हर चीज को करना है और तमाशा बनाना है कि हम जाति को मानते नहीं। पहले से कितना रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है देश के हर क्षेत्र में, हर जाति का, ये कोई जानता नहीं क्या? पहले के संपादक थे, उनके समय में कितनी जातियों के लोग थे? क्यों एक कॉकस के लोग, गिरोह के लोग थे? इस सवाल का जवाब है किसी के पास? कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, कितने लोगों को प्रतिनिधित्व दिया? क्यों नहीं पिछड़ी जातियों को, दलित जाति के लोगों को मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया? क्यों शर्माती रही? राहुल गांधी को आज सत्ता नहीं मिली है तो देश को जाति घृणा में, जाति जहर में झोंक देना चाहते हैं। राह चलते पूछेंगे एक पत्रकार किस जाति का है और उसके बाद वो पिट जाए। शर्म नहीं आती इससे? मुझे लगता है इससे ज्यादा घृणित कृत्य कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। आशुतोष जवाब दीजिए। सत्ता से बाहर होने पर इस तरह से किसी नेता ने बर्ताव नहीं किया हो, किसी नेता ने बर्ताव नहीं किया हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगंभीर नेता, इसीलिए कह रहा हूं। और ये राहुल गांधी लगातार अपने बोलने से, अपने भाषणों से, अपनी रैली से साबित कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि देश के हर व्यक्ति को राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जितनी बातें वो कह रहे हैं उन सबको बार बार सुनना चाहिए। बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल। और मैं एक और वाक्य सुनाना चाहती हूँ, एक और वाक्य सुनाना चाहती हूँ। अब अडानी अंबानी पर तो इतना बोलते हैं, राम मंदिर के कॉन्टेक्स्ट पर ये क्या कह रहे हैं? पिछले 3-4 दिनों से मैंने इकट्ठा किया है, ये मैं सुनवाना चाहती हूँ। पहले आशुतोष जी, पहले सुन लीजिए। एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, डांस होगा वहां पे। मीडिया में को दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। उधर देखो, वो देख ऐश्वर्या राय। अब रोहित अग्रवाल जी, मैं जवाब नहीं देने दिया नाविका जी। मुझे 10 सेकंड दीजिए। ओके। देखिए, जो सवाल इस देश के वर्चस्ववादी जातियों को तकलीफ देती है वो ये है जिस ओर मोहन भागवत ने इशारा किया था कि हमने 2000 साल तक एक खास तबके को पशुओं के समान ट्रीट किया है। जब भी आप जातिवाद का सवाल खड़ा करेंगे तो लोग ऐसे गुस्से में खड़े हो जाएंगे जैसे लगता है कि उनके ऊपर कोई पर्सनल हमला किया जा रहा। क्या यह सच्चाई है कि वो कौन जाति के लोग थे जिन्होंने 2000 साल तक मोहन भागवत के शब्दों में पशुओं की तरह व्यवहार किया? इसका भी हिसाब होना चाहिए। आशुतोष जी, सामने सच्चाई आनी चाहिए। आशुतोष जी, आपसे सवाल मैं पूछूंगी, इस जाति की तरफ तो महात्मा गांधी ने भी एक
मुहिम छेड़ी थी, B.R. अम्बेडकर जी ने भी, और उसके बाद अधिकतर समय तक राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने राज किया। तो क्या कर दिया जातियों के लिए, ये सवाल आप कभी जवाब नहीं देंगे इस बात का। लेकिन रोहित अग्रवाल जी हर सवाल के जवाब को मोदी को देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सवाल ना पूछना चाहिए, ना देना चाहिए। वो पत्रकारों को भीड़ में जो मर्जी कहें, कोई बात नहीं। वाराणसी में कहे तो वो सच्चाई है वाराणसी की। और ऐश्वर्या राय जो राम मंदिर में थी भी नहीं, उनके बारे रोज रोज जो बोलते हैं वो भी मैंने आपको सुनवा दिया। अब गलती किसकी है, हम प्रश्न पूछने वालों की या फिर राहुल गांधी की? Navika ji, I salute your spirit that you still think India Alliance exists. Actually, India Alliance have been collapsed in its own ego. And the only objective for the Congress is युवराज को स्थापित करना है। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान नहीं हो सकता जो आशुतोष आपके पैनल पे बैठ के दे रहे हैं। और इन्होंने पूछा कि कौन मुस्लिम एंकर है। मुझे लगता है कि अगर मैं बोलना शुरू कर दूं आपके चैनल के ऊपर तो आशुतोष का मुंह शर्म से छोटा हो जाएगा कि कौन मुस्लिम पत्रकार है। शायद इनको मुस्लिम पत्रकार दिखते नहीं होंगे। आशुतोष भाई, हिंदी से ज्यादा उर्दू अखबार हमारे देश के अंदर हैं। तो मुझे लगता है कि कृपया करके कम से कम अपनी मानसिकता को ठीक रखिए। बाकी मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूं कि अगली सारिका घोष आप बने। उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नहीं, आपकी मानसिकता पे शर्म आ रही है मुझे आशुतोष। आज आपकी मानसिकता पे मुझे शर्म आ रही है। आई थॉट यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, बट आप शायद ह्यूमन बीइंग कहलाने लायक ही नहीं रहे। आज आपको शर्म आनी चाहिए कि देश के अंदर आप पत्रकारों की जातियां बता रहे हैं। और मैं आशुतोष आपको बता दूं, आज जो मीडिया की दशा है देश के अंदर, इसी कारण आज आपको इस पैनल के ऊपर पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के बैठना पड़ रहा है, क्योंकि मीडिया कैन नॉट अफोर्ड यू, बिकॉज मीडिया डोंट हैव मनी। जो आप अरबपति, आपके जो मालिक, जो राहुल गांधी हैं, जो आपके मालिक, जो कह रहे हैं कि अरबपति है मीडिया के ओनर्स, आस्क देम देयर पेन, दे आर अ बिजनेसमैन एंड बिलीव मी, उनका पेन जरा सा जाके एक बार पूछो कि उनकी क्या स्थिति है, हाउ दे आर मैनेजिंग देयर एम्प्लॉय सैलरी एंड हाउ दे आर मैनेजिंग देयर बैंक इंटरेस्ट। Believe me, Ashutosh, you will feel shame on your statements. And only thing what you people are wanting is युवराज स्थापित होने चाहिए। देश की कोई चिंता नहीं। This is not about media houses or journalists. The issue here is उंगली वो उठाए जिसने खुद ये सवाल पूछा हो। अजय आलोक जी, आप क्या जवाब दें? नहीं, आशुतोष जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगंभीर आदमी के बारे में हर दिन चर्चा क्यों होती है। मुझे लगता है मैंने 1-2 दिन पहले आपको बताया था आशुतोष जी, अगंभीर आदमी को इस देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, उसका युवराज बना के जो राजा बनना चाहता है उसको बार बार थाली में लेके परोसिएगा तो चर्चा उसकी नहीं करेंगे तो क्या आशुतोष की करेंगे। और वैसे आशुतोष की जो आज जातिवाद पे लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन जब 14 का चुनाव लड़ने उतरे तो आशुतोष गुप्ता बन गए थे। वाह, क्या स्टैंडर्ड्स हैं आपके आशुतोष जी। राहुल गांधी अनडाउटेडली गंभीर नहीं है, इसमें किसी को शक नहीं है। राहुल गांधी को स्क्रिप्ट दी जाती है, उसको पढ़ देते हैं, उनका दोष भी नहीं है बेचारे का। मैं तो मानता ही हूं कि ग्रे मैटर की कमी है सीवियरली, लेकिन चर्चा तो उन्हीं की करेंगे ना, क्योंकि वो सामने वही है। कांग्रेस पार्टी को स्थापित करना है, लॉन्च करते लॉन्च ही हो रहे हैं, पता नहीं कब लॉन्च होंगे। वेल, ladies and gentlemen, the question is to paint everybody with a single brush, to raise questions about those who clearly are not the accused in this entire matter. Is this really fair? Well, I leave the judgment to you, the viewer, because it is the citizen of India who will take the final call on who is serious, who is non-serious, who's speaking the truth, and who's striking a chord. Well, people of India will give their answer. Thank you very much to all my panelists for joining me on debate number 1.